بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوب دل لگا کر پڑھ رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو جماعت اول مکات سوم کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، نئے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم گزشتہ ہفتے کے کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو آپ نے بہت عمدہ طریقے سے کر کے ہمیں بھیجا۔ پیارے بچوں، آپ جو ورک شیٹس حل کر کے بھیج رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، بہت خوب، شاباش۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ ورک شیٹس حل کر کے بھیجیں گے اور مزید داد وصول کریں گے۔ ہر ہفتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف بچوں کا کام دکھائیں تاکہ ہر بچے کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پیشے کیا ہوتے ہیں۔ پیشے سے مراد ہر وہ کام جو انسان کرے روزی کمانے کے لیے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے دیش کی ترقی کے لیے اپنایا جانے والا کام پیشہ کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، مختلف قسم کے پیشے ہوتے ہیں، جیسے انجینئرز بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی کیمیکل انجینئر ہوتا ہے، کوئی الیکٹریکل انجینئر ہوتا ہے، کوئی میکینیکل انجینئر ہوتا ہے، اور ان سب کا کام اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لینا ہوتا ہے۔ وکیل کا کام ہوتا ہے ہمیں انصاف دلانا۔ پولیس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہماری حفاظت کرنا، ہمیں برے لوگوں سے بچانا۔ پائلٹ، پیارے بچوں، پائلٹ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کمرشل پائلٹ اور ایک فائٹر پائلٹ۔ کمرشل پائلٹ کا کام ہوتا ہے مسافروں کو خیر و عافیت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا، جبکہ فائٹر پائلٹ کا کام ہوتا ہے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ فائر فائٹرز، پیارے بچوں، فائر فائٹرز وہ ہوتے ہیں جو آگ لگنے پر، ناگہانی آفت کے آنے پر لوگوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا نیا سبق بھی پیشے سے متعلق ہے۔ ہمارے نئے سبق کا نام ہے ہم اپنے وطن کے لیے کیا کریں گے۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے سوچا ہے کہ بڑے ہو کر آپ کون سا پیشہ اپنائیں گے اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں کیسے اپنا کردار نبھائیں گے اور اپنے ملک اور والدین کا نام کیسے روشن کریں گے؟ چلیے سبق شروع کرنے سے پہلے تدریسی مقاصد کی طرف چلتے ہیں۔ بچے سبق کو سمجھنے کے بعد پیشوں کے مفہوم کو جان پائیں گے، نئے الفاظ پڑھ پائیں گے، بڑے ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکیں گے، سبق کو روانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے اور دی گئی ورک شیٹس کو حل کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، اب نئے الفاظ کو ہجوں کی مدد سے میرے ساتھ پڑھیے۔ ڈال الف ڈا، کاف ڈاک، ٹیرے ٹر، ڈاکٹر، ڈاکٹر جو بیماروں کا علاج کرتے ہیں۔ فے و فو، جیم چھوٹی اے جی، فوجی، فوجی یعنی کہ سولجرز جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہے، فے الف فا، زوئے تے زت، حفاظت، حفاظت مینز پروٹیکٹ کرنا، آپ کی کسی سے حفاظت کرنا۔
आइन लाम अलिफ ला जीम साकिन, इलाज यानी कि ट्रीटमेंट। जैसे डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। बे ये बी, मीम अलिफ मा, रे वाउ रो, नून गुन्ना, बीमारों। बीमारों बीमार की जमा है यानी सिक पीपल। काफ ज़ेर की, सीन अलिफ सा, नून साकिन, किसान यानी के फार्मर। आज क्लास में मिस सादिया ने बच्चों को पेशे से मुतल्लिक बताया, और पेशे से मुतल्लिक बताने के बाद उन्होंने बच्चों से सवाल किया कि बड़े होकर आप अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे। बच्चों ने गौर से मिस की बात सुनी। अहमद, सारा और अली ने बड़े होकर अपने वतन की तरक्की के लिए अपनाए जाने वाले पेशे के मुतल्लिक इजहार ख्याल किया। अहमद ने कहा, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा और फौजी बनकर अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करूंगा। ज़ारा ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और बीमारों का इलाज करूंगी। अली ने भी जोश खरोश से हिस्सा लेते हुए कहा, मैं बड़ा होकर किसान बनूंगा ताकि लोगों के लिए अनाज उगा सकूं। सारा ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, मैं बड़ी होकर उस्तानी बनूंगी ताकि बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर सकूं और बच्चे बड़े होकर अपनी मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। सब बच्चों ने मिलकर वादा किया कि हम सब बड़े होकर अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। जी प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि आपको भी अभी से ज़हन बना लेना चाहिए कि आप बड़े होकर अपने वतन की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं ताकि खुशहाल माशरे की तकमील हो सके और हमारे बुज़ुर्गों का ख्वाब पूरा हो सके। प्यारे बच्चों, इस सबक के मश्क़ी सवालात में जाने से पहले आप इस सबक को अच्छे से पढ़िए, सोचिए और सोचने के बाद जवाबात को लिखिए। जी प्यारे बच्चों, ये हमारे आज के नए सबक हम अपने वतन के लिए क्या करेंगे की वर्कशीट है। इसमें सबसे पहले आपने दिए गए नए अल्फाज को दुरुस्त बनावट के साथ लिखना है। हमारा पहला लफ्ज़ है बड़ा, दूसरा लफ्ज़ है फौजी, तीसरा लफ्ज़ है डॉक्टर, चौथा लफ्ज़ है उस्ताद और पांचवा लफ्ज़ है किसान। सवाल नंबर 1, अल्फाज को उनके हरूफ से लकीर के ज़रिए मिलाइए, यानी कि आपको अल्फाज को उनके दुरुस्त तोड़ के साथ मिलाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको कुछ तोड़ दिए गए हैं और उनके सामने आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं। आपने दुरुस्त अल्फाज को उनके तोड़ के साथ लकीर के ज़रिए मिलाना है। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए गए हैं। इन जुमलों के नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने दुरुस्त ऑप्शन के आगे टिक का निशान लगाना है। जैसा कि पहला जुमला है, मैं फ़ौजी बनकर लोगों की
डैश करूँगा। ऑप्शंस हैं निगहदाश्त, हिफाजत, इलाज। नंबर 2, मैं डॉक्टर बनकर बीमारों का डैश करूँगा, घी। ऑप्शंस हैं तीमारदारी, हिफाजत, इलाज। नंबर 3, मैं किसान बनकर लोगों के लिए डैश उगाऊंगा, फल, फूल या अनाज। नंबर 4, हम सब बड़े होकर डैश की तरक्की के लिए काम करेंगे, मुल्क, शहर या घर। आपने पढ़कर दुरुस्त जवाब के आगे टिक का निशान लगाना है। जी प्यारे बच्चों, जांच और इस्लाह के अमल को मुमकिन बनाने के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम खुद करेंगे। अगर किसी भी जगह पर आपको किसी भी किस्म का मसला दरपेश आए तो आप हलशुदा वर्कशीट से मदद ले सकते हैं। यह हमारे आज के नए सबक की वर्कशीट है। इसमें सबसे पहले आपने नए अल्फाज को खुशखती के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त बनावट के साथ खुशखत करके लिखना है। हमारा पहला लफ्ज़ है बड़ा, दूसरा लफ्ज़ है फ़ौजी, तीसरा लफ्ज़ है डॉक्टर, चौथा लफ्ज़ है उस्ताद और पांचवा लफ्ज़ है किसान। सवाल नंबर 1, अल्फाज को उनके हरूफ से लकीर के ज़रिए मिलाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने अल्फाज को लकीर के ज़रिए उनके दुरुस्त तोड़ से मिलाया है। सवाल नंबर 2, पढ़ाए गए सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाइए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर जुमले के नीचे 3 ऑप्शन है और हमने दुरुस्त ऑप्शन के आगे टिक का निशान लगाया है। जैसा कि नंबर 1, मैं फ़ौजी बनकर लोगों की डैश करूँगा, हिफाजत। नंबर 2, मैं डॉक्टर बनकर बीमारों का डैश करूँगा या घी, इलाज। नंबर 3, मैं किसान बनकर लोगों के लिए डैश उगाऊंगा, अनाज। नंबर 4, हम सब बड़े होकर डैश की तरक्की के लिए काम करेंगे, मुल्क। जी प्यारे बच्चों, ये हमारे आज के नए सबक हम अपने वतन के लिए क्या करेंगे की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में सबसे पहले आपने अपना नाम और अपनी जमात का सेक्शन लिखना है। इस वर्कशीट में सबसे पहले आपको नए अल्फाज दिए गए हैं। आपने इन अल्फाज को दुरुस्त बनावट के साथ दी गई लाइंस पर खुशखत करके लिखना है। सवाल नंबर 1 में आपने अल्फाज को उनके दुरुस्त तोड़ के साथ लकीर के ज़रिए मिलाना है और सवाल नंबर 2 में आपने दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन वर्कशीट्स को अच्छे तरीके से हल करके अपने मुतल्लिका टीचर्स की आईडीज़ पर भेज देंगे। टीचर्स इन वर्कशीट्स को चेक करने के बाद आपको वापस अरसाल कर देंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।